Hello everyone. So in our last lecture, we'll discuss about the labor, definition of labor, what are the factors which are influencing the labor. Then we will discuss about the normal labor, abnormal labor, the sign of the labor, okay, and what are the 5 important factors, that is 5P of the labor, okay. So now today we'll discuss about the mechanism of labor. This is very important and this is a normal mechanism of labor, okay. So let's start. In the normal labor, there are the series of changes in the position and attitude of the fetus to accommodate himself to the pelvic to pass easily through the birth canal. Okay, as we know that through the birth canal, baby will be passed and delivered into the outer world. Okay, so during this journey, because baby क्या as a passenger है और birth canal क्या हमारा ऐसा pathway, okay, passageway. तो बेबी पैल्विक से होता हुआ और आउटर वर्ड में डिलीवर्ड होता है, ठीक है। तो बेबी को पैल्विक से डिलीवर्ड होने के लिए, ठीक है, आउटर वर्ड में डिलीवर्ड होने के लिए पैल्विक से होते हुए जाना है, ठीक है। अब उसे पैल्विक से जब बेबी एंटर करता है पैल्विक में, तो उसका जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है। वो अकॉर्डिंग टू द स्पेस ऑफ द पैल्विक वो अपने आप को क्या होता है, फ्लेक्स करता है, सो दैट कि वो इजीली पास आउट हो सके पैल्विक कैविटी से, ठीक है। बेबी की पोजीशन चेंज होती है, बेबी में इंटरनल रोटेशंस होती हैं, वो फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, अपनी बॉडी के शेप को चेंज करता है फ्लेक्शन होके, सो दैट कि वो इजीली डिलीवर्ड हो सके। तो उसकी क्या है, एक मैकेनिज्म है, ठीक है। एंड दिस मैकेनिज्म इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एंगेजमेंट ऑफ द fetal presenting part. Okay, whether the presenting part is vertex, whether the presenting part is shoulder, whether the presenting part is breech. But in a normal labor, the presentation is always is vertex presentation. Another we can say the cephalic presentation. Okay. So now discuss about the step of mechanism of the labor. अब बेबी किस तरीके से कहाँ पे कैसी पोजीशन लेता है और किस तरीके से बेबी आउट होता है. The first is engagement. Okay, engagement, then descent, then flexion, then internal rotation of the head, then extension, through the extension delivery of the head, then extension or external rotation of the head or internal rotation of the shoulders simultaneously, and the expulsion of the fetus to the outer world. So let's discuss about one by one, starting from the engagement. Engagement means after the 37 week of gestation completion, the baby head will engage into the pelvic cavity. The greater diameter of the fetal head passes through the pelvic inlet. ठीक है, जो ग्रेटर डायमीटर होता है फीटल हेड का, वो क्या करता है, पास करता है pelvic कैविटी में और एंटर होता है pelvic इनलेट में. The pelvic are divided into the three side ना, inlet, cavity and the outlet. So first the baby will be enter into the inlet. Okay, then second is a descent. Descent is the all over process. All over process. Why? Because descent means किसी चीज का नीचे की तरफ खिसकना या धंसना, ठीक है. So descent is the all over process because continuous pressure from the upper pole directly transferring to the lower pole through the baby, and the baby will be descend into the pelvic cavity. Okay, according to the dilatation of the cervix. The movement of the fetal through the birth canal during the first and the second stage of the labor. Okay, so in the descent means the movement will be done by the baby to accommodate him or herself into the pelvic cavity and also to move from the pelvic cavity to the outer world. Okay, now the flexion, the chin of the fetus move toward the fetal chest. Okay, in the flexion means तो क्या करता है, अपने आप को फ्लेक्स कर लेता है, तो उसका चिन टुवर्ड द चेस्ट हो जाता है. ओके, चिन जो होती है चेस्ट में टच इस तरह से हो जाती है. ओके, विच रिड्यूस द फीटल हेड डायमीटर, जिससे क्या होता है, फीटल हेड का जो डायमीटर है वो रिड्यूस हो जाता है फ्रॉम नियरली 12 to 9.5 सेंटीमीटर. ओके, बिकॉज अभी क्या कर लिया, अपने आप को फ्लेक्स कर लिया है. ओके, तो उसका जो शेप है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. जो स्पेस था वो क्या हो गया, थोड़ा मीन्स
बेबी ने अपने आप को जो फ्लेक्स किया, हेड को जब उसने फ्लेक्स किया, फ्लेक्स कैसे किया, चिन को चेस्ट की तरफ टच किया, तो जो स्पेस हो गया वो क्या था, बेबी अब कम अकोमोडेट करेगा। ओके, इंगेजमेंट, डिसेंट, फ्लेक्शन। नाउ दिस इज द इंगेजमेंट, ठीक है, बेबी डिसेंट हुआ एंड फ्लेक्स हो गया। इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, सी बेबी कहाँ है, हेयर। ओके, अब बेबी को कहाँ डिलीवर्ड होना है, पेब्लिक ऑब्लिक, सी जब इंगेजमेंट होती है बेबी का हेड पेल्विक के ऑब्लिक डायमीटर में इंगेज्ड होता है, ठीक है। और बेबी का जब हेड डिलीवर्ड होता है तो वो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर से डिलीवर्ड होता है, ठीक है। दिस इज द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक, मैं पेल्विक के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर की बात कर रही हूँ जहाँ से बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है। बट व्हेन द बेबी आर एंगेज इनटू द दिस वन पेल्विक, तो वो एक ऑब्लिक डायमीटर में एंगेज होता है, तो ऑब्लिक डायमीटर से उसे रोटेट होना पड़ता है, 1/8 रोटेशन होती है किस तरफ, सिम्फेसिस प्यूबिस की तरफ। तो इस तरह देखो, यहाँ पे भी क्या है, ऑब्लिक डायमीटर ऑफ द पेल्विक में एंगेज है, नाउ भी क्या होता है 1/8 रोटेट होगा सिम्फेसिस प्यूबिस, दिस इज योर सिम्फेसिस प्यूबिस, ठीक है, इस तरफ टर्न होगा, देन ओनली बेबी द बेबी हैड विल डिलीवर्ड। ओके, internal rotation, the rotation of the head until the longest diameter of the fetal head match the longest diameter of the maternal pelvis, तो longest diameter of the fetal head का वो मैच करता है longest diameter of the pelvic के। okay, now the extension, extension means like this one, extension मतलब अब की तरफ जाना, बेबी का हेड क्या होता है, extension से डिलीवर्ड होता है, अंडरस्टूड, एक्सटेंशन बेबी का हेड इस तरह से अब की तरफ जाएगा और डिलीवर्ड हो जाएगा, तो बेबी the fetal head pass beneath the synthesis, it's not synthesis, symphysis pubis and the pass out from the birth canal making the crowning. Okay, अब see इसमें one step missing है, internal rotation of the head के बाद आती है crowning. Okay, जब बेबी का head oblique diameter से anterior posterior diameter of the pelvic के rotate होता है 1/8, ठीक है। तो रोटेट होने के बाद वो क्या करता है, अगेन डिसेंट होता है, ठीक है। स्टेज आती है क्राउनिंग की, द क्राउनिंग स्टेज इज व्हेन द बेबी हेड इज विजुअलाइज्ड, hair visualization, bulbal gapping and anal spotting, and this is a time to perform the episiotomy if needed. Okay, now in the extension, the delivery of the head by extension, the external rotation means, okay, see बिफोर द एक्सटर्नल रोटेशन बेबी का हेड डिलीवर्ड होता है, तो बेबी क्या करता है, बेबी जब बेबी का हेड रोटेट होता है इंटरनली तो 1/8 रोटेट होता है सिम्फेसिस प्यूबिस की तरफ, ठीक है, लेकिन बेबी की जो बॉडी होती है वो स्टिल ऑब्लिक डायमीटर में रहती है, जैसे कि वो इंगेज हुई थी। अब बेबी का हेड डिलीवर्ड हो जाता है एक्सटेंशन के थ्रू, तो डिलीवर्ड होने के बाद अगेन बेबी का जो हेड है टूवर्ड द थाई वो क्या करता है, रोटेट करता है, जहाँ की उसका रेस्ट बॉडी पार्ट है, इंटरनली बॉडी पार्ट उसका है, बट जिस पोजीशन में उसका रेस्ट बॉडी पार्ट है उसमें क्या होता है, एक वो इक्वल डायमेंशन में आ जाता है, ठीक है। नाउ अगेन अब एक मींस बेबी का जो पूरा बॉडी है वो एक सेम डायरेक्शन में आगे, हेड और बॉडी सेम डायरेक्शन की है, अब क्या करेगा, बेबी का हेड अगेन सिम्फेसिस की तरफ रोटेट करता है, क्योंकि अब शोल्डर का डिलीवर्ड होना है, तो हेड और शोल्डर क्या है, साइमल्टेनियसली रोटेट करता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है, फ्रॉम द ऑब्लिक डायमीटर ऑफ द पेल्विस टू द symphysis pubis, simultaneously external rotation of the head from thigh to the symphysis pubis, ठीक है। और इस तरह से एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक में बेबी का पूरा बॉडी का अलाइनमेंट इक्वल हो जाता है। Now we have to deliver the shoulder. First, the delivery of the shoulder. ठीक है, first the delivery of the anterior shoulder. Which is the anterior shoulder? The shoulder which is come first from the symphysis pubis. So symphysis pubis से कौन सा आ रहा है? This one. And the posterior shoulder comes under the or sweep under the perineum. The posterior shoulder sweep under the perineum like this one. Understood? The anterior shoulders delivered from the symphysis pubis and the posterior shoulder sweep under the perineum
एंड द रेस्ट, अब देखो नाउ इन दिस वन एक्सपल्शन हो गई है. The shoulder and the remaining of the body are the delivered. Shoulder, I told you how to deliver the shoulder. Now the shoulder are delivered. Baby head is delivered. Rest of the body. So rest of the body we will deliver by the lateral flexion. Lateral flexion मतलब exact manner में हम लोग से delivered करते हैं. Understood? Again, I'm explaining you the mechanism of labor because this is very important to all of you. Okay, listen carefully. The mechanism of the labor. The mechanism means the normal mechanism of the labor, how the baby will be delivered from the pelvic cavity to the outer world. Okay. So first is the engagement. अब अगर उसे pelvic से delivered होना है तो उसे pelvic में पहले engaged होना है. Okay. तो जो भी presenting part है, हम बात कर रहे हैं normal labor की, तो presenting part vertex है. Okay. तो first the vertex come the contact of the pelvic and engage the presenting part enter into the pelvic brim. ठीक है, और brim को हम inlet भी बोलते हैं. Enter into the pelvic brim. Okay, और the inlet, और वहां आके क्या होता है, वो इंगेज होता है. इंगेजमेंट के बाद बेबी का जो मूवमेंट है वेरी लेस. इंगेजमेंट के बाद मूवमेंट नहीं होती है. ठीक है. अब इंगेजमेंट में देखो जो प्राइमरी ग्रेविडा होती है वो 3 वीक प्रायर द लेबर प्रोसेस इंगेज जाती है. एंड मल्टी ग्रेविडा में एट द टाइम ऑफ ट्रू लेबर पेन में ही बेबी इंगेज होता है पेल्विक कैविटी में. उससे पहले वो मूवमेंट करता रहता है. ठीक है. नाउ इन द एंगेजमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज से जुड़ना. वो क्या एंगेजमेंट है, यानी कि बेबी के प्रेजेंटिंग पार्ट का पेल्विक कैविटी, नॉट कैविटी, पेल्विक ब्रिम में एंटर होना और उसमें अटैच हो जाना, वो क्या है, एंगेजमेंट. ओके. देन इज द, अब एंगेजमेंट जब होती है तो एंगेजमेंट पेल्विक कैविटी के पेल्विक बोन के कौन से एरिया में होती है, तो बेबी का जो लार्जेस्ट डायमीटर है, ठीक है, वो एंटर होता है और पेल्विक के ऑब्लिक डायमीटर में एंगेजमेंट होती है. ठीक है. पेल्विक के ऑब्लिक डायमीटर में एंगेजमेंट होगी, यानी इलियोपेक्टिलर एमिनेंस से और आपके सैक्रोइलियक जॉइंट तक. ठीक है. जो आपका ऑब्लिक डायमीटर है वहां बेबी का हेड का एंगेजमेंट होगा. बेबी का जो हेड है इलियोपेक्टिलर एमिनेंस में क्या टच करता है, डिनोमिनेटर बोलते हैं उसे. डिनोमिनेटर इज cephalic, सॉरी, डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपिट. जो बेबी की जो ऑक्सीपिट बोन होती है वो क्या होती है, टच होती है इलियोपेक्टिलर एमिनेंस में. ठीक है. तो बेबी का हेड एंगेज होता है पेल्विक के ऑब्लिक डायमीटर में. ऑब्लिक डायमीटर क्या है, इलियोपेक्टिलल एमिनेंस टू सैक्रोइलियक जॉइंट की आपका ऑब्लिक डायमीटर है. बेबी का हेड एंगेज हो गया. ठीक है. एंगेजमेंट होने के बाद डिसेंट इज ऑल ओवर प्रोसेस, यानी पूरी प्रोसेस में बेबी डिसेंट. अब एक बार एंगेज हो गया तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो नीचे की तरफ खिसकता जाता है अकॉर्डिंग टू द पावर. द पावर मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से बेबी डिसेंट होता है पेल्विक कैविटी में और डिलीवर्ड होता है आउटर पार्ट में. ओके. सो डिसेंट इज द ऑल ओवर प्रोसेस. जब तक ये भी डिलीवर्ड नहीं हुआ तब तक मदर को कॉन्ट्रैक्शन आती रहती है, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, एक पावर आती है, प्रेशर आता है, बेबी डिसेंट होता रहता है. नाउ द फ्लेक्शन. फ्लेक्शन मीन्स बेबी क्या करता है, अपने आप को फ्लेक्स कर लेता है, क्योंकि उसे क्या करना है, बर्थ कैनाल से डिलीवर्ड होना है. अब उसे अगर बर्थ कैनाल से डिलीवर्ड होना है तो बर्थ कैनाल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने आप को अकोमोडेट करना है उसमें. ठीक है. सो दैट कि वो इजीली डिलीवर्ड हो सके, कहीं पर स्टक ना हो. ठीक है. तो उसके लिए वो क्या करता है, अपने आप को फ्लेक्स कर देता है, चिन टूवर्ड द चेस्ट. उसका चिन होता है वो चेस्ट में टच जाता है, जिसका बेबी के जो बॉडी का डायमीटर होता है वो लेस हो जाता है, इजीली क्या होता है, डिसेंट होता है नैरो पैसेज में. ओके. नाउ द इंटरनल, अब क्या होता है, एंगेज हो गया, डिसेंट हो गया, फ्लेक्स हो गया. अब क्या करना है, क्योंकि वो ऑब्लिक डायमीटर में है, बेबी का पूरा बॉडी जो है वो ऑब्लिक डायमीटर में है, तो बेबी का सिर्फ हेड नॉट बॉडी. बेबी का हेड इंटरनली रोटेट होता है टुवर्ड द सिम्फैसिस ट्यूबिस. कहां से, इलियोपेक्टिलल एमिनेंस में था ना, अब वहां से वो सिम्फैसिस ट्यूबिस की तरफ क्या होगा, रोटेट होगा. कंप्लीट रोटेशन होती है सिम्फैसिस ट्यूबिस, दैट इज द 1/8 रोटेशन जिसे हम बोलते हैं. ठीक है. बट
द बॉडी स्टिल इन ऑब्लिक डायमीटर, यानी कि बॉडी क्या होगी, ऑब्लिक डायमीटर में होगी। अब अगर ऑब्लिक डायमीटर में बॉडी होगी, बेबी का हेड सिम्फेसिव डिस्क की तरफ रोटेट होगा तो क्या होगा, नेक में ट्विस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। देन अगेन डिसेंट, बिकॉज कंटिन्यू प्रेशर ऊपर से आ रहा है तो बेबी अगेन डिसेंट होगा। नाउ द स्टेजेस ऑफ क्राउनिंग। क्राउनिंग मीन्स द विजुअलाइजेशन ऑफ द हेड and hair of the baby and the fetus, you can say, and vulval gapping। वल्वा क्या करता है, गैप होगा। वल्वल गैपिंग क्यों हुई, क्योंकि कोई चीज अगर ऊपर से आ रही तो ऑटोमेटिकली वल्वा ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड एनस स्पॉटिंग, एनस क्या करेगा, स्पॉट करेगा, यानी कि ओपन हो जाएगा एनस भी। तो दिस इज द साइन ऑफ क्राउनिंग, vulval gapping, anus spotting, and the visualization of the head and hair of the baby. Okay. If needed, if the less space in the perineum or the less elasticity in the perineum or the baby size is big, okay, then only we have to perform the episiotomy. The episiotomy will perform at the time of crowning only. Okay. Now, delivery of the head by extension. The delivery of the head by extension means आपकी तरफ, तो इस तरह से कहते हैं बेबी का हेड डिलीवर होता है एक्सटेंशन के थ्रू। नाउ द रेस्टिट्यूशन। अब बेबी क्या था, बेबी का बॉडी ऑब्लिक डायमीटर में बेबी का हेड डिलीवर्ड हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विक के। तो दोबारा से बेबी क्या करना है, अपने ऑब्लिक डायमीटर में जाना है। बेबी का हेड तो डिलीवर्ड हो गया है, एक्सटर्नली है तो वो एक्सटर्नली ही रोटेशन होती है हेड की, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन में क्या होता है कि बेबी का हेड जहां पे प्रेजेंट डिलीवर्ड हुआ एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस कम्स अंडर द सिम्फेसिस प्यूबिस, राइट। अब वो ये करेगा, रेस्टिट्यूशन प्रोसेस आती है डिलीवरी ऑफ द हेड के बाद। नेक्स्ट स्टेप है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन में बेबी का हेड टुवर्ड द थाई जाता है, ठीक है। ऑब्लिक डायमीटर किस साइड होगा, थाई की तरफ होगा। वेदर द राइट वेदर द लेफ्ट, जिस भी पोजीशन में बेबी है, एलओए में है या आरओए में, ठीक है। बेबी का हेड टुवर्ड द थाई गया। नाउ द बॉडी और हेड क्या है, एक सेम अलाइनमेंट में आ गए। नाउ external rotation of the head and internal rotation of the shoulder toward the symphysis pubis again, because अब क्या करना है, शोल्डर को डिलीवर्ड होना है। तो भाई शोल्डर को डिलीवर्ड होना है तो स्टिल शोल्डर कहाँ है, ऑब्लिक डायमीटर में है। अब शोल्डर डिलीवर्ड होने के लिए कहाँ आएगा, सिम्फेसिस प्यूबिस में आएगा। तो अगेन इंटरनल रोटेशन होती है शोल्डर की टुवर्ड द सिम्फेसिस प्यूबिस इंटरनली, और हेड की, तो हेड तो क्या है, डिलीवर्ड हो गया, तो हेड भी डिलीवर्ड होता है साथ में शोल्डर के टुवर्ड द सिम्फेसिस प्यूबिस। नाउ बेबी क्या है, अब एक सेम अलाइनमेंट में आ गई है, ठीक है। बेबी क्या हो गई, नाउ इन द सेम अलाइनमेंट। नाउ द डिलीवरी ऑफ द बेबी, सी थाई की तरफ गया, फिर इधर से सिम्फेसिस प्यूबिस में आ गया। नाउ द डिलीवरी ऑफ द बेबी लाइक दिस वन, पेल्विक में इस तरह से होता है, पहले ये ऑब्लिक में था, अब ये एंटीरियर पोस्टीरियर में आ गया। नाउ द डिलीवरी ऑफ द शोल्डर। अब डिलीवरी ऑफ द शोल्डर में फर्स्ट द एंटीरियर शोल्डर इज व्हिच वन comes under the symphysis pubis, जो symphysis pubis से आ रहा है, that is the anterior shoulder, and the posterior shoulder slip under the perineum only, और जो posterior shoulder होता है वो perineum से slip होता है, right। Now the delivery of the shoulder is completed, okay, then the expulsion of the rest of the body, ठीक है। expulsion of the rest of the body, like head delivered हो गया, shoulder भी क्या है, outer part में आ गया, क्या रह गया है, lower extremities रह गई है। Then we will hold the baby head and the shoulder and do the lateral flexion, up and down, lateral flexion, जैसे जिग जैग मैनर में हम बेबी को डिलीवर्ड कर लेते हैं। And this is the normal mechanism of labor. Understood to all? I hope you understood. This is very important. If you have any doubt, any query, you will ask. Okay. Next, we will start the first stage of labor in the next lecture only. Okay. Thank you.